Wala kay Santino. Malamang sila may pakala ng pagsabog kanina. Gusto mo niya tayong tanggol na yun. Hindi siya mapatay-patay. Bakit mo hinihaang mangyari to? Ayusin ko to, Papa. Papunta ngayon dito yung mga taong nagplano niyan. Kailangan yung pagbayarang mga gerero. Ang pagkamatay ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag na hindi tayo makabawi. Kailangan ng hatid sa impyerno yung sa demonyung tanggol na yan. Si Gustavo Guerrero ang apo ko. Ninakaw mo ng asawa ko. O di ba naman kayamaan na matagal ko na pinaghirapan? Nanakawin mo! Bakit sinasaktan na natin Kasi ang atraso sa akin ng nanay mo. Kasama ka na doon! Yan ang dahilan kung bakit kita tinago kay Gustavo at kung bakit ganon kagalit ang asawa niya sa akin. Tanggol, habang maaga, huwag ka nang tumakbo. Delikado ang buhay mo. Hindi mo kilala ang mga girero. Papatayin ka nila. Wala tumatakbo ko para sa mga tao. Hindi ko sila pinibiguin. Hala ka. Kung anong gusto mong gawin, umaya ka sa nanay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Ano po nangyari? Anak, marami ka pang kailangan malaman tungkol sa pagkatao mo. Angkong! Andiyan na si Mayor. Mayor! Magandang gabi. Maraming salamat sa pagpapasok ninyo sa amin dito. Hindi naman sa nagmamadali kami, pero yan na ba? Yan na ba pera? Ito bang kailangan ninyo? Maraming salamat, eh. Salamat, pera din to. Mia! Ano ibig sabihin nito? Ginawa namin ang utos ninyo, di ba? Uy, pa sa tanggol. Imposible yan, Mayor. Kitang-kita ng dalawang mata ko nung sumabog ang entabladong kasama si Tanggol. The entire barangay injured. 19 dead. At yung kaisa-isang taong pinakontrata ko sa'yo, humihinga pa ngayon. Mayor, imposible yan. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Dahil sa ginawa mo, nakuha ng mga Montenegro ang simpatya ng mga tao. Ngayon, imbis na makatulong kayo, sinira nyo ang plano namin sa eleksyon. Mayor, maaaring pag-usapan natin ito. Babalikan namin si Tanggol. Pangako. Hayop ka. Ikaw pa lang pumatay kay Kuya David. Dahil sa'yo, nagawa kong patayin si Kuya Tanggol. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa akin. Ilan nyo ka na yan? Nagdala kayo ng backup? Ha? Hindi, Mayor. Kami lang to. Kami lang. Wala nang iba. Sino yun? Saan galing po to? Kay baba! Si Erica. Diyan ka lang! Diyan ka lang!
Hoy, Tuwar! Huwag ka na magtago! Tuwar! Hindi mo makakalabas na dito ng buhay? Ito na yung katapusan mo. Tino! Ano ginagawa mo dito? Walang na-horse mo, paliwanag ka. Pag may kumilos dito, putokan ninyo. Gilito! Fire the shot! Someone's inside the house. Who Someone fired tried to the kill me. shot? I have no idea. Go! Ano, nahanap niyo na? Hindi ba kung? Find him. Hanapin niyo siya and bring him to me. Dead or alive. Kopya kong! Tara! Tara! Diyan lang kayo. Huwag niyong palalabasin yan. Go upstairs. Wait, bakit ka may baril? Ikaw ba yung... Erika, huwag ka na maraming tanong. Kailangan mo matakas dito. Uy, sasama ko. Sasama ko. Ayoko naman sa bahay na to eh. Erika, delikado. Huwag ka na sumama. Alam ko yung pasikot-sikot dito. Hindi ka makakalabas na wala ako sa Tino. You need me. Okay? Okay. Okay. Halika. Huwag kayo magpaputok! Si Erika! Sunay sa baba. Kayo, rangin sa gate. Walang ba kalabas? Let's go. Dito tayo sa Tino. Dito, halika. Ano yun? Wala rito. Maghiwalay tayo.
pa nakalayo yan. Ate, makatakas ito. Napapalik rin tayo. I don't know, Santino. Bakit ka pa kasi nila hinahabol? Tell me the truth. Sinubukan ko patayin si Miguelito. Kasi pinatay niya si Kuya David at pinagtangkayan si Kuya Tanggol. What? Kapatid mo si Tanggol? Hindi magkaaway pala yung pamilya natin. Kaya nga kailangan ko na matakas dito eh. Ito na rin tumakas sa bahay na to, Santino. Mas pipiliin ko sumama sa'yo kaysa makulong na naman ako dito. Plano ako. Let's go. Erika, ano ba balak mong gawin? Makikita nila tayo. That's exactly my plan. Akin na yung bato. Hanapin nyo. Sa basement, tignan nyo. Yun na. Yes, Mayor. Di ba kotse ni Eric kayo? Si Erika, habulin nyo! Bilis! Habulin nyo! Baba ka dyan! Baba! Walang tao! Let's go this way. May labasan dito, Santino. Let's go. Tara! Si Erika. Si Erika, nakita nyo? Mayor, ito lang po nakita namin sa Selinyador. Isa lang kailangan nyo hanapin. Isa lang! Hindi nyo pa nagawa! Hindi yan makakalayo. Hanapin ninyo. Hanapin nyo na ngayon! Yes, Mayor. Kayo, doon kayo! Kayo, doon! Tayo, samahan niyo ako dito! Tara! That guy tried to kill me and kidnap your daughter. Ano? Hayaan na lang natin. CCTV. Let's check the CCTV. Let's go! Horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buti na lang, hindi namatay si Tanggol. Hindi ako paniwala makakagawa ni Santino sa kuya niya yun. Di ba tayo pupunta sa ospital para bantayan si Tanggol? Oo nga. Palusubil pa siya ng mga kaaway niya para patayin. Hindi tayo pwede pumunta doon. Maraming polis doon. Ang ibig sabihin nito, piling mga grero yung kalaban niya ngayon. Pati na yung grupo ni Santino. Mas delikado ngayon ang buhay ni Tanggol. Sa pagpasok na ngayon sa politika, mas maraming magtatangka sa buhay niya. Alam naman ni Tanggol yan na magiging magulo talagang buhay niya nung pinasok niyang politika. At lahat tayo sinang-ayunan natin yan. Pero kung di yan ginawa ni Tanggol, hindi na mababagong bulok na pamamalakad sa Maynila. At nagsakripisyo si Tanggol para sa Maynila upang matigil na yung katiwalian at kasamaan ng mga gerero. Oh, si Tanggol! Tanggol! Tanggol, sandali lang. Buti walang masamang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo kami. Tanggol, may kailangan kang malaman. Alam na namin kung sinong may gawa nito. Sino? Sigurado hindi ka makapaniwala. Di mo maisip na magagawin niya sa iyo. Sino? Ang kapatid mo. Si Santino. Kasama niya ang Red Phoenix. Nabol namin sila, Tanggol. May mga tinamaan kami, pero marami rin nakatakas. Sigurado kayo? Sigurado kayong kapatid kong gumawa nito? Oo, Tanggol.
Nakuha namin ang detonator. Sigurado kami na may kinalaman ng kapatid mo at ang mga kasamahan niya sa nangyari sa'yo. Delikado na talagang buhay mo ngayon, Tanggol. Hindi lang mga gererong kalaban mo, pati na kapatid mo. Tanggol. Kinalimutan na ni Santino ang pagiging magkapatid ninyo. Kaaway na ang turing niya sa'yo. Isa lang ang dapat matira sa inyo ngayon, Tanggol. Siya o ikaw. May problema ba, Marites? Kanina ka pa tahimik. Wala na lumabas ka sa ospital. Ramon, nakita kami ni Tinding sa ospital. May... Sinabi ko sa'yo na may kailangan ka pang malaman tungkol sa pagkatao mo. Ang lola mo, si Tinding, ipinagtapat siya sa akin ng totoo. Kinausap ako ng lola mo. Dati daw siyang nagtatrabaho sa City Hall. Nung mayor pa si Don Gustavo. Nagustuhan siya, napagkusunadahan. Dinukot siya, ikinulong. Pinagsamantalaan. At ako ang naging bunga nilang dalawa. Ito, binigay sa akin ni Tinday kanina. Mga ari-arian ni Don Gustavo, nilagay na sa pangalan ni Tinday. Pagpapatunay na isa akong gerero. अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप अपनी ब्लॉग की विजिबिलिटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं और गूगल पर रैंक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम टॉप एसईओ टिप्स को डिस्कस करेंगे जिनसे आपके ब्लॉग्स रैंक होंगे और आपकी ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टिप नंबर 1 व्हिच इज अ कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च के लिए द बेस्ट टूल दैट आई रिकमेंड इज सैमरश। आप सैमरश यूज़ कर सकते हैं, आप उबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट क्यों करते हैं? बेसिकली इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। ठीक है, हमने वो कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जिनका डिसेंट सर्च वॉल्यूम हो, लेकिन उनका कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन लो इसलिए होना चाहिए ताकि हम उन पे फास्टर रैंक कर सकें। ठीक है, तो हमें पता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। हमने आ जाना है कीवर्ड ओवरव्यू पे, इधर आके हमने अपने कीवर्ड सर्च कर लेने। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले हम ना एक वेबसाइट ले लेते हैं, हम ना एक आर्टिकल उठाएंगे और उसके बाद हम उसे टोटली ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू टेक ब्लॉग्स। इट्स techblogs.com। इसमें बेसिकली ना ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सब आर्टिकल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अर्निंग एप्स या वेबसाइट्स या ऐसा कुछ भी यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नीश, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें। अच्छा, इधर से ना हम कोई भी एक आर्टिकल ले लेते हैं।
10 best money making applications. Okay, let's open this. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें ना आपको एक कीवर्ड हम ले लेते हैं. आप 5 to 6 कीवर्ड एक ब्लॉग में ऐड कर दें. दीज आर जस्ट मोर देन इनफ. हम इसमें एक कीवर्ड अभी ऐड कर लेंगे, ठीक है. ओके, सो हम इधर आ जाएंगे सबसे पहले कीवर्ड ओवरव्यू में, और यहाँ पे हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है. यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं मनी अर्निंग ऐप से रिलेटेड, ठीक है. तो हम इधर आ जाते हैं, हम इधर लिख देते हैं मनी एप्स, ठीक है. आप डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करेंगे ना, तो हम देखते हैं जहाँ हमें एक डिसेंट सर्च वॉल्यूम मिल जाए ना. वैसे ओके, 6.6 इज़ अ गुड सर्च वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो बहुत ज़्यादा है और हमने तो इतनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए हमें. तो हम क्या करेंगे, नीचे आके हमें ना ये कीवर्ड वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है. इनको आपने कर लेना है ओपन लिंक इन न्यू टैब. उसके बाद आपने इनके फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं. हमने देखना है कि हमारे पास जो कीवर्ड्स है ना, उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और जो केडी है उनका कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी, वो मीडियम होनी चाहिए. ईजी कर लें आप, ठीक है. यहाँ से ईजी का फ़िल्टर लगा दें. इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं ना, तो बाद में ये थोड़े से रह जाते हैं. लाइक इधर देखिए 20.8 के हैं ना, तो यहाँ से आपने ईजी का फ़िल्टर लगाया जैसे, तो ये 20.8 के से ये कीवर्ड्स रह गए हैं ओनली 389. अच्छा, हाउ टू गेट फ्री मनी ऑन कैश ऐप, हाउ टू गेट मनी ऑन कैश ऐप फॉर फ्री, हाउ टू बोरो मनी, और वगैरह वगैरह वगैरह. सपोज हम ये वाला कीवर्ड उठा लेते हैं क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और इसका केडी भी अच्छा है. इसको कॉपी कर लें आपने ना, क्योंकि 5 to 6 आपने कीवर्ड्स उठाने हैं, तो आपने उनको इधर नोट पैड में ऐड कर लें. हाउ टू गेट फ्री मनी ऑन कैश ऐप. अब ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है. इस पे CPC है, इसका KD है. यू कैन ईजिली रैंक ऑन दिस कीवर्ड. इट हैज़ वॉल्यूम ऑफ 6.6 के. अच्छा, तो इसके अलावा ये कीवर्ड है फ्री मनी ऑन कैश ऐप, ठीक है. यहाँ से ना आपको बहुत मज़े मज़े के ना मिल जाएंगे. आपने इस तरह ना लिख लेने हैं, अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है. अच्छा, अब हम इस आर्टिकल पे आ जाते हैं, टॉप 10 मनी मेकिंग एप्स. हम टेक ब्लॉग्स को लॉग इन कर लेते हैं, और उसके बाद WP-admin से आप एडमिन पैनल पे लॉग इन हो जाएंगे. डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास, तो हम अपने इस ब्लॉग को सर्च कर लेंगे. इधर ये वाला हमारा ब्लॉग है, इसको Ctrl+C से कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट करेंगे, सर्च कर लेंगे. तो यहाँ पे वी विल हैव द आर्टिकल. यस, हियर वी हैव. अच्छा, इसको हमने एडिट के साथ ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है, और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटिव, ठीक है. जो SEO की दूसरी टिप है ना, वो ये है कि आपने इसका टाइटल ऑप्टिमाइज़ करना है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द टाइटल. उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपने प्लगइन यूज़ करें, आइदर यू आर यूजिंग रैंक मैथ और योस्ट SEO, कुछ भी आप यूज़ करें ना, आपने यहाँ से आके इसका SEO स्कोर चेक कर लेना है ना. यहाँ से आके आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ से टाइटल, इसका परमालिंक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है. तो हम ये सारा इसमें ऐड करते हैं. हमारा कीवर्ड है फ्री मनी ऑन कैश ऐप, ठीक है. 10 बेस्ट फ्री मनी ऑन कैश ऐप. आपने ना एग्जैक्टली ये पूरा कीवर्ड यूज़ करना है, फ्रेज बाय फ्रेज कीवर्ड यूज़ करना है. ऑन कैश ऐप इन 2024, ठीक है. अब इसी को हमने पेस्ट करना है. ये जो हमारा टाइटल है, सॉरी टाइटल हमारा ऑलरेडी ग्रीन में जा रहा है, तो इसको हम, हो जा भाई, Ctrl+Z हो जा. नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है. इसको हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं. 10 बेस्ट, ओके, इट इज़ 10 बेस्ट फ्री मनी. ये ना, इनके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटलाइज कर दिया करें तो ये अच्छा हो जाता है. इन 2024 10 बेस्ट फ्री. अच्छा, इसको ग्रीन कर लीजिएगा. अच्छा, उसके बाद ये परमालिंक आ गया. अच्छा, इसको एप्स है ना, ये इसके
अच्छा, hello people, which are the apps that you use to make real money in 2024? इसकी जगह पे hello, do you want free money on Cash App? Read the complete article for in-depth knowledge on how to get free money on Cash App. अब ये देखिए हमने इसमें दो कीवर्ड्स NOWLEDG सॉरी। अब ये कितने मज़े से हमने इसमें दो कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। इसको हमने क्रॉस कर देना है। ये हमारी हो गई है टिप नंबर 2, जिसमें आपने ऑप्टिमाइज करना है टाइटल और उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपका टाइटल ऑप्टिमाइज हो। हमने क्या करना है कि अपनी कीवर्ड को अपने टाइटल के बिगिनिंग में यूज़ करना है। हम इधर आ गए, इंट्रोडक्शन में आ जाए, यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया, विच आर द एप्स। इसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर देते हैं डू यू नो हाउ टू गेट फ्री मनी ऑन कैश ऐप in 2024. Discover top choices. Okay, we are good with it. इसके अलावा आपने जैसे आपके पास हेडिंग है, ये इंटरनेट की वजह से कुछ इमेज नहीं लोड हो रही, लेकिन यहाँ पे आपने रियल मनी मेकिंग एप्स की जगह आप करते हैं इसको रिप्लेस कर दें हाउ टू गेट फ्री। इसको आप कर सकते हैं 10 टिप्स ऑन हाउ टू गेट फ्री मनी ऑन कैश ऐप। जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उन पे आप रैंक करना आसान हो जाता है आपके लिए। इससे आपकी SEO इंक्रीज होगी और आपका CTR भी इंक्रीज होगा। बेसिकली हमारा जो गोल है वो गूगल को और रीडर्स को दोनों को अट्रैक्ट करना है। और इसके अलावा आपने फोकस करना है कि जो आपका कंटेंट है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गूगल को हाई क्वालिटी और रेलेवेंट कंटेंट चाहिए होता है। आप हमेशा मेक श्योर कराएं कि आपका जो आर्टिकल है ना, लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट 10 बेस्ट मनी मेकिंग एप्लीकेशंस, तो मेरा ये आर्टिकल 10 बेस्ट मनी, लाइक आई वुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मैं बताऊंगी कि मनी मेकिंग एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती है, उसके बाद मैं फ़ौरन से उन 10 एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगी। इट्स इम्पॉर्टेंट। आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है। ऑलवेज ट्राई टू एम फॉर राइटिंग एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड काउंट के लिए इतना बड़ा अपना आर्टिकल लिखें। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और आपने अपने कंटेंट को, अभी हमें देखेंगे मैंने जितने भी मेरे पैराग्राफ्स हैं ना, दे आर लाइक 2, 3, 4 लाइन्स के हैं, ठीक है। वो तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपके ना छोटे छोटे हों। आपने बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, आपने सब हेडिंग्स यूज़ करनी है। H1 आपका टाइटल होता है, उसके बाद H2 से H6 तक आप हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि आपके लिंक्स रेलिवेंट हो। ये वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 5 इज़ टू ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल एंड पेज स्पीड, ठीक है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, हम कोई टूल पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पता चल जाएगा कि आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है और उसकी लोडिंग स्पीड क्या है। ये अब यूज़र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और SEO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्लॉग है उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लाइक हम यूज़ कर सकते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स। इधर से क्या है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पेज है ना, इट शुड लोड अंडर 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये अभी ये टेक ब्लॉग्स ही है इधर, और इसकी परफॉर्मेंस डेस्कटॉप पे 97 है, accessibility इट्स 96 एंड SEO इज़ 85। और मोबाइल पे हम देखते हैं, ओके मोबाइल पे इसकी परफॉर्मेंस कम है। आई टेल माई डेवलपर टू करेक्ट दिस। अच्छा, और इसके अलावा क्योंकि ना जो एक स्लो या एक अनरिस्पॉन्सिव साइट है ना, उससे आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब होती है,
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने इमेजेस के बारे में नहीं भूलना। आपकी गूगल आपके इमेजेस को देख नहीं सकता, लेकिन वो आपके ऑल्ट टेक्स्ट को रीड करता है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी इमेज में आ जाते हैं ना, तो हम देखेंगे उसका ना ऑल्ट टेक्स्ट प्रोवाइडेड होगा। ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जो आप ऑल टेक्स्ट लिखें उसमें आपने अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो इससे गूगल को पता चलता है कि आप एसईओ प्रॉपर एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो गूगल की गूगल एनालिटिक्स यूज़ करें, सर्च कंसोल यूज़ करें, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें, ट्रैफिक पे नज़र रखते रहें, लाइक कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपकी पोस्ट कैसा परफॉर्म कर रही हैं और किस किस पॉइंट पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स करते रहें और अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते रहें। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आपने इन सब एसईओ टिप्स को फॉलो करना है और आप अपने ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर देंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू आंसर देम ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अर्न विद इफ़त। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम डिस्कस करने लगे हैं टॉप 5 बेस्ट नीशेस दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन अगर आप रैंक करना चाहते हैं इन द ईयर 2025। तो अगर आप लोग ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू मेक मनी, या आप कोई कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, या आप इवन अपने पैशन शेयर कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ राइट नीश। So without any further delay, let's get into the video and let's get started with our first pick. The number one niche that we will be diving in is AI and automation. AI and automation. Okay. बेसिकली ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है, और अगर आप इसमें 2025 पे काम कर रहे हैं ना, तो आप सक्सेसफुल हुए पड़े हैं। आपको पता है इतने मज़े के AI टूल्स आ गए हैं जिनसे आप रोज़ाना इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लोग क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, क्या ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, हाउ टू गाइड्स क्या चल रही हैं। इवन आप बहुत सारी और नीशेस ट्राई कर सकते हैं, लाइक AI फॉर बिजनेस, AI फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, या ऑटोमेशन इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि लोग बेसिकली पीपल आर हंग्री, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि AI उनकी लाइफ को बेटर कैसे बना सकता है, किस तरह ईजी बना सकता है। और कंपनीज इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं कि उनको पता चले कि AI से उनकी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है। क्योंकि अब बहुत सारे काम हैं जो पहले लोगों को इतना टाइम लगता था करने में, अब वो AI लाइक कुछ सेकंड्स में वो काम परफॉर्म हो जाता है, कुछ मिनट्स में हो जाता है। ओके, द सेकंड नीश इज हेल्थ एंड वेलनेस। अच्छा, अब स्पेसिफिकली हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे ना, वो होगी मेंटल हेल्थ। लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है। रिसेंट कुछ टाइम में लोगों को ये अवेयरनेस मिलने लगी है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है, ठीक है। और अब 2025 में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली फोकस्ड होना चाहिए कि हम स्ट्रेस रिलीफ कैसे कर सकते हैं, हमारी मेंटल क्लैरिटी कैसे आएगी, व्हाट इज़ थेरेपी, माइंडफुलनेस क्या है, सेल्फ केयर क्या है। और ये क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ, क्योंकि वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे अपने काम में, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लाइक बिजनेस और पर्सनल लाइफ में ये जो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते ना, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हर्डल्स। तो ये जो बेसिकली नीश है ना, ये आपके सारे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगी, और यू विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवॉल्व। ओके, कमिंग इन टू नंबर 3, विच इज़ सस्टेनेबल लाइफ। Sorry, I wrote the wrong spelling. Sustainable life. अच्छा, अब सस्टेनेबल लाइफ बेसिकली क्या है कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है, और सेम वो पॉइंट है कि लोग ज़्यादा जीना चाहते हैं। पीपल वांट टू लिव अ ग्रीनर लाइफ, ठीक है। तो इस
सस्टेनेबल लाइफ में ना आपका जो कंटेंट है वो आना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, ज़ीरो वेस्ट लिविंग क्या है, इकोसिस्टम में क्या गैजेट्स हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो अच्छा, अगर आप 2025 में इस नीश पे काम कर रहे हैं ना, तो पीपल आर बेसिकली ईगर टू अडॉप्ट योर इको कॉन्शियस हैबिट्स। आप पीपल विल डाइव टूवर्ड्स यू, लोग आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ, आपकी हैबिट्स की तरफ, आपके प्रोडक्ट्स की तरफ। ओके, आवर फोर्थ पिक इज़ रिमोट वर्क। इसकी तो इम्पोर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम सबको पता है हमारी लाइफ में रिमोट वर्क आजकल कितना ज़्यादा इन हो गया है और इसकी डिमांड टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि टिप्स, टूल्स, गाइड्स ये बहुत ज़्यादा आ गई हैं और लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इन चीज़ों के साथ, तो पीपल वांट टू हैव मोर अवेयरनेस अबाउट दिस। तो अगर आप ये उनको एडवाइस कर रहे हैं ना कि वो अपने रिमोट टीम्स किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्टिव रह सकते हैं, किस तरह लाइक कहाँ कहाँ जा सकते हैं और साथ साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब आप रिमोटली काम कर रहे होते हैं ना, तो यू आर नॉट बाउंड टू अ स्पेसिफिक प्लेस। आपको अगर सम पीपल लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं जहाँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आप वहाँ जाके कुछ घंटे अपना काम करें और फिर सुकून से चिल करें। तो क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली फ्रीडम चाहिए होता है और they want to make it happen, so you can help them out. Okay, and the last but certainly not the least we have is personal finance. अच्छा, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि ये जो जेन जी और मिलियनर्स की नई जनरेशन है ना, ये क्या है, इनको मार्केट वायलेट करनी है, इनको स्टूडेंट डेप्ट इन पे बहुत ज़्यादा है। ये जो यंगर जनरेशन है, दे आर लाइक ईगर टू लर्न कि अपने पर्सनल अपने फाइनेंसेस जो है उनको किस तरह मैनेज करना है। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब करना कैसे। सो यू विल बी गाइडिंग देम कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। आप उनको कंटेंट आइडियाज़ दें रिलेटेड टू बजटिंग, रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन है ना, ये ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, इनमें बहुत इन है। तो आप उनको आइडियाज़ देंगे वो इनमें किस तरह सक्सीड एक्सेल कर सकते हैं। उसको उनको रियल एस्टेट का बताएं, उनको पैसिव इनकम आइडियाज़ कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये आइडियाज़ दें, क्योंकि इसकी ना जो डिमांड है वो बहुत क्लियर है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल एडवाइस आप दें यंगर जनरेशन्स को, तो वो क्योंकि एवरीवन वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इट्स वेरी गुड, आई गेस। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने डिस्कस किए हैं टॉप 5 नीशेस दैट यू पीपल विल बी फोकसिंग ऑन इन द ईयर 2025। तो अगर आप एआई के बारे में पैशनेट हैं या वेलनेस के बारे में या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये वो एरियाज हैं जिन पे आप you're going to just excel and thrive. Okay, let me know in the comments कि आपको कौन सी niche ने सबसे ज़्यादा excite किया, और drop a comment below to let me know, और don't forget to hit the subscribe button ताकि सारी videos मेरी आपके पास पहुँचती रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारे tips और tricks मिलते रहें। That was all for today. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Okay, Allah Hafiz.